Hello students, welcome you all to our 8th session of our chapter number 3. Students, in this session we are continuing with our exercise 3.6 question 2 problem sums. We will solve problem sums in this session. Okay, our first problem sum is Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. ऋतु जो है बोट में जा रही है, तो जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम मतलब बोट का स्पीड अलोंग विद द वाटर, वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. ओके, तभी उसकी 20 किलोमीटर जो है ट्रैवल करते हैं 2 आवर्स में, एंड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, शी इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, एंड शी टेक हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स फॉर 4 किलोमीटर. डाउनस्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं इन 2 आवर्स, एंड अपस्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं इन 2 आवर्स. तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. करंट मतलब पानी का बहाव. करंट डजंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स द स्पीड ऑफ द वाटर. तो व्हाट यू विल डू, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर. जब पानी रुका हुआ है तो ऋतु का स्पीड कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी के बहाव का, फ्लो ऑफ वाटर, वो कितना मान लिया, y किलोमीटर पर आवर. So what will be the downstream speed, means when the Ritu is going along with the flow of water. तो downstream speed में क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं when we do cycling, अगर पीछे से हवा आती है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो एयर का स्पीड और हमारा स्पीड दोनों क्या होता है, एड अप हो जाता है. बट when the air comes, wind blows from this direction, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हमारी स्पीड में एयर की स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. अंडरस्टूड? सो डाउनस्ट्रीम जब हम जाते हैं along with the flow of water, speed gets add up, so x plus y kilometer per hour, and upstream means against the flow of water, so the speed will be subtracted, x minus y kilometer per hour. Now what is given to you, that 20 kilometer downstream in 2 hours, ds मतलब downstream, 20 kilometer downstream in 2 hours. Now what is speed? Speed is distance upon time, speed is distance upon time. तो यहाँ से टाइम ऊपर गया, स्पीड नीचे आ गया. Therefore, time equals to distance upon speed. So, what is the time? Time is 2 hours equal to distance. Distance कितना है, 20 किलोमीटर upon speed. Speed downstream में speed कितनी होती है, x plus y. इस फॉर्मूला में हमने सब कुछ पुट किया है. इस फॉर्मूला में है ना, we have substituted the values. Time is how much, 2 hours equal to distance is how much, 20 kilometer, and speed of downstream is x plus y. Now you will bring this x plus y upstairs and 2 in the denominator, cross multiply किया, x plus y equal to 20 upon 2, तो 20 upon 2 will become 10, so x plus y equal to 10. This is your equation number 1. Now second case is 4 kilometer upstream in 2 hours. 4 kilometer upstream in 2 hours, it is given in the question. So once again time equal to distance upon speed, so time is 2 hours equal to distance कितना, 4 kilometer upon speed, so upstream speed is x minus y. Okay, so once again cross multiply, x minus y will go there and 2 will come down, so x minus y equal to 4 upon 2, and 4 upon 2 is how much, 2. So this is your equation number 2. You can solve by any of the method. Simplest method is elimination method. X plus y equal to 10 and x minus y equal to 2, y cancelled, so x plus x is 2x equal to 12, so x equal to how much, 6. Okay, you got x equal to 6, putting in equation 1, 6 plus y equal to 10, so y equal to what, 10 minus 6, that is how much, 4. So आपको x मिला 6, y मिला 4, so therefore speed of Ritu in still water is how much, 6 km per hour, and the speed of water current is how much, 4 km per hour. Okay, so this is the problem sum, students. आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से स्टेटमेंट रीड करना है. You have to read the problem sum and then you have to frame these statements. These statements are very important. After framing statements, you will frame the equations. Once the equations are framed, you can use any method to solve the equations. Okay? Students, let us start with our second problem sum. What is our second problem sum? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं डिजाइन बनाने का, उसमें 2 वुमेन
और 5 मेन अगर साथ में काम करते हैं तो दे कैन फिनिश दैट एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men, अगर 3 वुमेन और 6 मेन आते हैं तो दे कैन फिनिश इन 3 days. तो फाइन टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone to finish the work. तो अगर खाली एक वुमन काम करेगी तो कितने दिन लगेंगे, और एक मैन अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे. ओके, तो सी हियर, लेट टाइम टेकन टू फिनिश टास्क बाय 1 woman alone, let time taken to finish task by 1 woman alone equal to x days and 1 man alone equal to y days. अगर एक ही वुमन काम करती है तो सपोज x डेज में काम पूरा होता है, और एक ही मैन अगर काम करेगा तो y डेज में. ओके, सो एक वुमन पूरा काम करती है x डेज में, तो 1 डे में कितना काम करेगी, 1/x. 1 वुमेन्स 1 डे वर्क विल बी 1/x, और 1 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/y. रेट ऑफ वर्क होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो वर्क डन इज 1 अपॉन टाइम टेकन कितना, x, तो 1/x. ऐसे मैन के लिए रेट ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो वर्क डन कितना, 1 अपॉन टाइम टेकन कितना, y, तो 1/y. ओके, तो एक वुमन का एक डे का वर्क है 1/x, और एक मैन का एक डे का वर्क है 1/y. नाउ योर केस 1 इज 2 women and 5 men. 2 women 5 men together can do it 4 days. So 2 women, एक वुमन का 1/x, तो 2 women का हो गया 2/x. 5 men, एक मैन का 1/5, so 5 men का हो गया, एक मैन का 1/y, so 5 men का हो गया 5/y, इक्वल टू 4 days. तो 4 days को भी रेट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो 1/4. अंडरस्टूड? वंस अगेन, 2 women means 2/x, 5 men means 5/y, तो 2x plus 5/y इक्वल टू 4 days, यानी 4 नहीं लिख देना, उसको भी रेट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/4. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. Then next is 3 women plus 6 men. 3 women और 6 men. So 3 women means 3/x and 6 women means 6/y. Okay, 3 women है तो 3/x, 6 men है तो 6/y, equal to 3 days तो 1/3. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 1/x को a मानेंगे और 1/y को b मानेंगे. इसको 1 और 2 नंबर देने की जरूरत नहीं है. सिंपली लेट 1/x इक्वल टू a and 1/y इक्वल टू b. So it will become 2a plus 5b equal to 1/4. 2a plus 5b equal to 1/4. Cross multiply 4 over here. 4 2s are 8a, 4 5s are 20b equal to 1/1. Okay, this is your equation number 1. ये अपना equation number 1 है. Okay, now next one. दूसरा वाला क्या है, ये 3a plus 6b equal to 1/3, क्योंकि 1/x a है और 1/y b है. So 3a plus 6b equal to 1/3. Again cross multiplying this 3 over here. So 3 3s are 9a or 3 6s are 18b equal to 1. Equation number 2. Now you have to solve both these equations. आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट पर्सनली मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है. मैं a के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ. 8 and 9 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देयर एलसीएम इज 8 9s are 72. तो इस 8 को मैं 9 से इंटू करूंगा और इस 9 को 8 से इंटू करूंगा टू मेक देम 72. Multiplying equation 1 by 9, whole equation by 9, and multiplying equation 2 by 8, पूरे equation को 8 से. तो पहले वाले को 9 से करेंगे, तो 9 8s are 72, 9 into 20 is 180b equal to 9 1s are 9. 2 को 8 से इंटू करेंगे, तो 8 9s are 72, 8 into 18, 18 8s are 144 and 8 1s are 8. Okay, since they are of same sign, तो minus minus minus. 72a minus 72a cut, 180b minus 144b. So 180 minus 144 is 36b equal to 9 minus 8 is how much? 1. So therefore you got b equals to 1/36. 36 will come down in the denominator. So you got the value of b. अब मैं b की वैल्यू किस में डालूं? 1 में डालूं कि 2 में डालूं? कैसे पता पड़ेगा? वैसे किस में भी डालो तो भी आंसर सेम आता है, बट अगर मैं 2 में डालूंगा ना 1/36, तो 18 के साथ 36 इजीली कटेगा, क्योंकि 18 के टेबल में आता है 36. 20 के साथ फिर इजीली नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा. ओके, सो आई हैव पुट इन द इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग इन इक्वेशन 2, 9a plus 18 into b is 1/36 equal to 1. So doing the cuttings, 18 1s are 18 2s are. तो आपको क्या मिला, 9a plus 1/2 equal to 1.
तो प्लस 1/2 will come in the RHS minus 1/2. So 9a equal to 1 minus 1/2. So 9a equals to 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा हाफ. So a equals to 1/9 into 2. 9 नीचे आ जाएगा तो 9 2 सर कितना हो जाएगा 18. So therefore you got a equals to 1/18 and b equal to 1/36. But we don't want a and b, we want x and y. तो a मतलब कितना 1/x. a हमने किसको लिया था 1/x and b means 1/y. So 1/x equal to 1/18 and 1/y equal to 1/36. Taking the reciprocals ले लो तो therefore x equal to 18 and y equal to 36. So what you got? Therefore one woman alone takes how many days? 18 days. एक woman का alone का कितना x days यानी 18 days and one man alone takes how many days? 36 days to complete that embroidery work. Okay students, this is very very important sum. इसमें ये बहुत important है कि 4 days का 1/4 क्यों किया? Rate of work done upon time taken. उस हिसाब से ये हुआ है ये. So very very important sum. इसको 2-3 बार अगर आप solve करोगे in your rough notebook for your practice, that will be much better for you. Okay students. Now students, let us go for third problem sum, which is the last problem sum of this exercise. Okay, question number 2 का third sum. Ruhi travels 300 kilometer to her home. उसके घर के लिए पूरा रास्ता कितना है 300 किलोमीटर, partly by train and partly by bus. थोड़ी जर्नी ट्रेन से कर रही है और थोड़ी जर्नी बस से कर रही है. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है, टोटल जर्नी कितना है केस 1 में टोटल जर्नी है 300 किलोमीटर. अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो बस से कितना करेगी 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और टोटल टाइम कितना लेगी 4 आवर्स. ओके, और सेकंड केस क्या बोलते हैं कि इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. मतलब अगर टोटल जर्नी 300 किलोमीटर का है ओके तो उसमें अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है तो बाकी का बस का कितना होगा 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर बस से करती है तो उसको पहले जितने टाइम लगता था उससे 10 मिनट ज्यादा लगेगा. तो पहले टाइम लगता था 4 आवर्स तो नाउ 4 आवर्स 10 मिनट्स. तो टाइम को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे आवर्स में. तो 4 आवर्स 10 मिनट्स में क्या होगा 4 आवर प्लस 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10/60 तो 0 0 कट तो ये कितना हो गया 1/6. तो ये हो गया 6 4 24 प्लस 1 तो 24 प्लस 1 कितना हो गया 25/6. ये 6 इधर एलसीएम दिया 6 4 24 प्लस 1 25/6 आर. 4 आर 10 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 25/6 आर. ओके, तो अभी हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन देखो इधर. हमने क्या मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज योर केस 1? व्हाट इज योर केस 1? योर केस 1 इज टोटल जर्नी इज 300 किलोमीटर. बाय ट्रेन इट इज 60 किलोमीटर. सो बाय बस विल बी 300 माइनस 60 दैट इज 240 किलोमीटर. ओके, दैट इज इन टोटल टाइम 4 आवर्स. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना x किलोमीटर है तो ट्रेन का जर्नी कितना 60. तो टाइम क्या होगा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड x तो 60/x प्लस टाइम अभी दूसरा बस का डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना 240 अपॉन स्पीड कितना y तो 240/y. ये भी टाइम है ये भी टाइम है. ये ट्रेन का टाइम है और ये बस का टाइम है. ट्रेन का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड और बस का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम कितना 4 आवर्स. इसको 1/4 नहीं कर देना. ये भी टाइम तो ये भी टाइम ही है. ओके, सेम ट्रेन यहाँ पे कितना 100 किलोमीटर है और बस कितना है 200 किलोमीटर है. तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन तो इसका टाइम कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 100/x और इसका टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 200/y इक्वल टू टोटल टाइम इज 25/6. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे 25/6 आ गया. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे क्योंकि दोनों के नीचे x और y है नीचे नीचे तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b. So this will become 60a plus 240b equal to 4. 60a plus 240b equal to 4. तो वैसे तो हम बहुत सारा कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन खाली 4 कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये 4 कट जाए उसके साथ. तो खाली 4 कॉमन निकाला तो 4 15 60
और 4 60s are 240 है, तो अंदर 15 और 60 बच गया. नाउ ब्रिंगिंग दिस 4 डाउन, तो 4/4 कितना बच गया? 1. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. 15a plus 60b equal to 1. Now second equation, 100/x will become 100a, 200/y will become 200b equal to 25/6. Now we can take actually 100 कॉमन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 25 ही खाली है तो 25 कॉमन ले लिया. 25 4s are 100 and 25 8s are 200. तो 25 कॉमन लेके उसको नीचे भेज दिया, तो ये 25 और वो 25 कट गया और इन टर्न ये 6 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया. आई होप सबको समझ में आ रहा है. ये 25 नीचे आ गया और 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 कट गया तो कितना आ गया? 1. और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 4s are 24a और 6 8s are 48b इक्वल टू यहाँ पे दोनों 25 कट के 1. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब मैं 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? मैंने किसका कोएफिशिएंट सेम किया? मैंने a और b का, सॉरी a और a का. इसमें a का कोएफिशिएंट 15 है and here the coefficient of a is 24. So what is the LCM of 15 and 24? LCM of 15 and 24 is 240. कैसे आया? ये 15 है और ये 24 है. 3 5s are 15, 3 8s are 24. Then वापस से क्या 5 से करो, 5 1s are 5 8s are, तो खाली 8 है तो 8 पूरा आ जाएगा. तो 3 5s are 15 और 15 8s are 120. So its LCM is 120. तो ये 15 को 120 करने के लिए हमको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 24 को 120 से इंटू करने के 120 बनाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा. इस इक्वेशन 1 को 8 से और इक्वेशन 2 को 5 से. मैं मिटा दे रहा यहाँ से, आपको कंफ्यूजन नहीं हो. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 8 टू मेक इट 120 एंड इक्वेशन 2 by 5 टू मेक दिस 120. तो क्या मिला अपन को? ये बाद में आएगा, इसके नीचे ये. तो इधर से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हमने किससे इंटू किया? 8 से. 15 8s are 120, 60 into 8 is 480 and 8 1s are 8. और इसको हमने किससे? 5 से इंटू किया. 24 into 5 is 120 और 48 into 5 is 240 and 1 into 5 is 5. Subtracting both equations, 120a minus 120a is cancelled, so 480 minus 240 is 240b equal to 8 minus 5 is 3. Okay, so b will be 3/240. 3 1s are 3, 3 8s are 24 और ये 0 तो 80. So your answer is 1/80. So you got b equals to 1/80. Putting that equation in equation what? This 2. मैं equation 2 में डाल रहा हूँ मैं. Okay, so 24a plus 48b, b is 1/80 equal to 1. अब यहाँ पे कटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग? किसका टेबल लगा रहे हैं? 4 का टेबल. तो कितना आएगा? किसका टेबल लगा रहे हैं? 4 का टेबल भी नहीं लगा सकते. किसका टेबल लगाते हैं? डायरेक्टली 8 का टेबल. 8 6s are 48 और 8 10s are 80. सीधा 8 का टेबल. 8 6s are 48 और 8 10s are 80. So 24a plus 6/10 equal to 1. अब यहाँ पे 10 को यहाँ पे एलसीएम दो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. So you will become 240a plus 6 equal to 10 1s are 10. So 240a equal to 10 minus 6. 10 minus 6 will become 4. So a equal to 4/240. So 4 1s are 4. 4 6s are 24 to 60. So it is 1/60. So you got a equals to 1/60 and b equals to 1/80. Okay, now a means what? 1/x equal to 1/60. तो x कितना आ गया? 60. And 1/y equal to 1/80. तो y कितना आ गया? 80. So ये x और y क्या थे? Speed of train and speed of bus. So therefore your last statements, यहाँ पे जगह नहीं है तो I am writing here. Speed of train equal to 60 km/h and speed of bus equal to 80 km/h. Students, by this we finish exercise 3.6. Okay, students, एक और चीज आपको बता दूं. There are some illustrations also which are very very important जो आपको solve करने. Especially illustration number 19. ये boat वाला sum है ये. Okay, so this type of illustration and this type of problem sums are very important from examination point of view. इनमें से आने के chances बहुत ज्यादा रहते हैं. So do practice of these types of problem sums. एक एक दो बार करेंगे. Starting में किसी को भी नहीं आएगा. एक एक दो बार देखो, फिर उसको बिना देख के solve करो. Then only you will get the problem sums. Okay. Now in the next session we will do graphs. हमने यहाँ से पूरा complete कर दिया. हम next session में graphs करेंगे जो हमने आगे छोड़े हुए. Okay, graphs हो जाएगा complete. Then we can finish the chapter.
So be ready with the graph book in the next session. Okay, students, till then, thank you.